کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ آقا و مولا حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نشابت پیش کریں. محبتوں کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سردی کا موسم ہے. رات کے 9:45 بج چکے ہیں اور محفل پاک میں تمام آئے ہوئے سامعین حضرات اور اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے باوقار علماء و حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر خدمت ہوں. کچھ باتیں سماعت فرما لیں. ویسے تو ہم کو محسوس ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنی کچھ اب سننے کے موڈ میں ہو. سنیں گے ماشاء اللہ. پیچھے والے حضرات کو سلام جتنا جلدی ہو جائے ختم ہو جائے. موبائل دیکھیں ٹھیک رہے گا. آ جائیے آگے آ جائیے. جو پیچھے والے ہمارے نوجوان ہیں پیچھے آگے آ جائیے. نوجوانوں کو تو ہر وقت آگے ہونا چاہیے لیکن یہ لوگ بوڑھے آدمی کو آگے کرتے ہیں نوجوان لوگ پیچھے رہتے ہیں. کبھی چوک پر سے ہم آ رہے تھے تو دیکھیں کہ نوجوانوں کا پورا جم بھیڑ کچھ ادھر کچھ ادھر کبھی موبائلوں میں کبھی ادھر ادھر دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے. یہ ہمارے قوم کے بہت ہی افسوسناک مقام حالات افسوسناک. اللہ اکبر. جس قوم کے بچوں کو اس شب برات کے مہینے میں کم سے کم یہ ذوق و شوق ہونی چاہیے کہ ہم کچھ دین کی باتوں کو سیکھیں. ہم کچھ اچھی باتوں کو سیکھ کر کے ہونے والی شب برات کی رات میں نفلی عبادت کو ہم کس طرح گزاریں گے کس طرح کریں گے اس کو سیکھنے کی للک ہونی چاہیے. لیکن آج وہ للک دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ ہمارے قوم کے نوجوان یہ ہمارے قوم کے حالات. چلیے خیر بھائی حال چند منٹ کی باتیں ہیں آپ کے ذہن تک میں پہنچتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. محمد سے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کم و بیش اس خاک گیتی پر 1,24,000 پیغمبر دین اس خاک گیتی پر تشریف لائے انسان کی ہدایت کے لیے. اور اسی طرح میں چند باتیں آپ کے ذہن تک کرنے کی سعادت حاصل کروں چونکہ گھر میں بچی کی پیدائش کے خوشی کے سلسلے میں یہ محفل میلاد النبی کا انعقاد ہے اور جس مناسبت سے محفل پاک ہوتی ہے خطیب اسی مناسبت سے خطاب کرنے کی جسارت کرتے ہیں. تو اسی تناظر میں آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں. بس اتنا سا ہے کہ لوگ نہیں آئے ہمیں اس کا غم ہے. یہ سامعین نہ ہو اس کا ہمیں غم ہے. ہم نے سامعین کے لیے محفل نہیں سجایا. ہم نے تو نبی پاک کے لیے محفل سجایا. ہم تو نبی کی یاد میں محفل سجائے. ہمیں اس کی فکر کی ہے کہ نہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں. ہمیں اس کی چاہت نہیں کہ لوگ مجمع لمبی چوڑی بھیڑ ہوگی تبھی ہم خطاب کریں گے. مجھے اس کی فکر نہیں. میں کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں لمبی چوڑی خطاب اس وقت کروں گا جب لوگ مجمع میں سننے والے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوں. وہ تعداد دیکھ کر خطاب نہیں کیا. وہ تعداد دیکھ کر خطاب کرنے کا مول نہیں ہے بلکہ سمجھانے کا مول تو وہ ہے کہ جب چند ہی لوگ ہوں کچھ بات سننے والے ہوں چند ہی بات ہو اس کا احترام کرنے والے ہوں. لاکھوں کا مجمع ہو سنے ادھر سے ادھر چلا جائے کوئی مطلب کا نہیں. بولا جائے خطیب رات بھر خطیب خطابت کرتا رہے. مبلغ رات بھر اپنی بلاغت کی خطابت آپ کو سناتے رہے. شاعر حضرات اپنی مزاح بھری آواز سے آپ کو جوش و خروش میں لایا کرے. لیکن دوستو لانے کا مقصد صرف یہی ہے. سنانے کا مقصد صرف یہی ہے. نبی کی ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی تعلیم عام ہو جائے. نبی کی سنت کے ہم پیروکار ہو جائیں. حضور کی سنت پر عمل کرنے لگے. میرے آقا کے میں سچا غلام ہو جاؤں. مدنی تاجدار کے سچے غلام ہو جاؤں اور آقا یہ کہہ دے یہ کوئی اور نہیں ہے میرا غلام میرا غلام. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت
माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुनते हैं, बड़ी तेजी के साथ आपके जहन तक अल्लाह तबारक तआला हिदायत नसीब अता फरमाए। एक बताओ वापस से बहुत ही मजे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खैर अता फरमाए। देखें दोस्तों, जब इस दुनिया खाके गीती पर बुराइयां आम हो गई, मैं चूंकि तफसीली गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल मोटे तौर पर सिर्फ आपको ध्यान दे रहा हूँ। जब बुराइयां आम हो गई, बुराइयों का बोलबाला हो गया, जहाँ बच्चियों का कोई इज्जत व मकाम न रखा गया, लोगों ने बच्चियों को ये सोचा कि ये नाजुक बाजार की सिर्फ चाहने वाली जगहों की ये नाम क्या औरतें हैं। दोस्तों, जहाँ बेवाओं को बेइज्जत करने जाने लगी, जहाँ बेवाओं का कोई मकाम न रहा, जहाँ मुहिबानी गिरामी औरतों को शरेआम मुहिबानी गिरामी बेइज्जती के मकामों से गुजरना पड़ा। लेकिन उसी वक्त में दोस्तों, जब बच्चियां दरगोर दफन होने लगी, जब बच्चियों को मुहिबानी गिरामी अपने जिस बाप की गोद से जन्म लेने वाली जन्म आने वाली बच्चियां, जिस माँ की गोद से जन्म लेने वाली बच्चियां जब दुनिया में आई तो मुहिबानी गिरामी माँ सिसकती हुई रह गई, लेकिन बाप मुहिबानी गिरामी वहीं खड़ा रहा और बच्चियों को मुहिबानी गिरामी सीधा दरगोर करता हुआ नजर आया। जब दुनिया के लोगों में इतना बच्चियों के लिए जुल्म सितम होने लगे तो मुहिबानी गिरामी बच्चियों की नजर उठती है, आसमान की तरफ उठती है। मौला जब इस दुनिया में भेजा था, अरे मौला तूने इस कायनात में जब भेजा था तो कभी माँ हवा बनी है, तो कभी ये देखा गया है कि इसी दुनिया में जो भी आया है, चाहे कितने भी दुनिया में जन्म लेने वाले हैं, अगर नबी भी आए हैं इसी माँ के गोद से जन्म लिया है, गौस भी आए हैं इसी माँ की गोद से जन्म लिए हैं, सहाबा भी आए हैं इसी माँ की गोद से जन्म लिए हैं, जितने भी अंबिया आए हैं इसी माँ की गोद से जन्म लिए हैं। मौला मुझे भी तूने माँ के गोद से जन्म दिया है, लेकिन ये दीन देखना पड़ रहा है कि आज बच्चियां दफन होती नजर आ रही है, आसमान की तरफ नजर उठती है, मुहिबानी गिरामी सिसकती है, रोती है, दफन होती रह जाती है। मुहिबानी गिरामी रोने वाली बच्चियों के दिल पर एक सांस भरती है और उसके बाद उसके चेहरे में हाशिया बढ़ाता है, ए मेरे अब्बा हुजूर, आपके यहाँ मैंने जन्म ली थी, आपके लिए रहमत बन के आई थी, मौला ने मुझे रहमत बना करके भेजा था, आपके घर के सजाया था, लेकिन मेरी जिंदगी अब आखिरी रही, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। अब कोई आने वाला ऐसा दुनिया में आएगा जो अल्लाह का महबूब बन के आएगा, अल्लाह का हबीब बन के आएगा, सारे आलम के लिए रहमत बन करके आएगा, और जो रहमत बन के आएगा वो बच्चियों के लिए भी रहमत बन करके आएगा। हर एक सीने से लगाने वाला बन के आएगा, सीने से लगाने वाला बन के आएगा और दुनिया की तारीफ करवा रही। अल्लाह अकबर, मुहिबान गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसी तराजू में हला मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं आपको सुनाऊं, लेकिन कभी जी ये चाहता है कि मैं अगर इधर करूं तो लंबा वक्त हो जाएगा, और कभी सोचता हूं कि इधर आपके जहन तक पहुंचूं तो फिर न जाने कहां पहुंच जाएंगे। बहरहाल बड़ी तेजी के साथ वापस से सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दरूद पाक सुना दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें मुहिबानी गिरामी इज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना देखें। मुहिबानी गिरामी, जहां औरतों के बारे में लोग दुनिया आज बात करती है, आज के हुकूमत, आज के बादशाह बात करते हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले इस पैगाम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। और वो कौन ऐसी पहलू नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, वो कौन ऐसा पहलू नहीं है, वो कौन ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आका ने तारीफ न दिया, कौन ऐसे पहलू नहीं है जिसके बारे में आका ने रहबरी न की हो, कौन ऐसे मकामात हैं जहां पर आका ने रहबरी दुनिया को न की हो। सारे रहबरों में रहबर बन करके आका आए और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों तुम रिसर्च करने के बाद में, देखने और खोजने के बाद में ये कहोगे कि यही काम होना चाहिए। आज से 1400 साल पहले आका फरमा चुके हैं, आज से 1400 साल पहले आका फरमा चुके हैं और पैगाम अता फरमा चुके हैं, ए दुनिया के लोगों ये रास्ता अपना लोगे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। सोचने वाली बात है, उस मकाम को याद करें। थोड़ी सी मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, जिस वक्त हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, सोचिए दौलत की कमी नहीं है ना, दौलत की कमी नहीं, ताजिरा है ना हजरत, ताजिरा है, तिजारत करने में सबसे ज्यादा माहिर और बहुत तिजारत के माल है आपके पास। लेकिन सोचिए तो सही, उस वक्त भी औरतें जो बेवा हो जाती थी उसको किस नजर से देखा जाता है, दौलत। लेकिन आप कुरान जाइए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सोचने की बात यह है कि हुजूर ने सबसे पहले अगर अपनी शादी की है तो वो बेवा से है ना। और गौर कीजिए अगर आज का जवान होता है ना, आज का जवान हो तो मोहिब्बान गिरामी सबसे पहले भाग जाएगा, नहीं भागेगा। अरे बोलिए। और एक चीज देखिए, गौर कीजिए, सोचने की बात यह है माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 बरस की और हुजूर की उम्र 25 बरस की है, 25 बरस की। सोचने की बात है, अल्लाह अकबर। हुजूर ने सबसे पहले अपने निकाह के लिए पैगाम को अगर कबूल किया है तो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किया है ना। और ये नहीं कि दौलत के बाद दुनिया के लोग आज ये कहते हैं कि बहुत बड़ी दौलत थी, कि दौलत थी उनके पास में, दौलत लेकर के आई थी, इसलिए नहीं। कुर्बान जाइए दोस्तों, हजरत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब निकाह करके हुजूर के घर में तशरीफ लाई, मोहिब्बान गिरामी इज़ान मिल्लत इस्लामिया देखे तो सही, अल्लाहु अकबर। जब आई तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुए तो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था कि ए मेरे सरताज, मेरे पास सैकड़ों दिनार है और वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, इसलिए कि ये मेरे सैकड़ों दिनार, ये मेरे पैसे आप ले लें और मुझसे खुश हो जाएं, मुझसे खुश हो जाएं। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, इस जितने पैसे को तू लेकर के आई है, इसको मक्के की गलियों में जितने फकीर गरीब रहते हैं उसमें इसको तकसीम कर दो, अगर वो ले लेंगे मैं भी तुमसे खुश हो जाऊं। सोचिए, और सब पैसे को लिया और गुरबा में, फकीरों में, यतीमों में तकसीम कर दिया। हुजूर ने अपने पास कुछ नहीं रखा। अल्लाह अकबर। सोचने की बात तो ये है कि इतनी सारी दौलत हो, लोगों के मुफ्त हाथ आए, और आज तो मांग करके लोग लेते हैं। अरे बोलिए ना भैया, बिल्कुल। आज तो मांग करके लोग लेते हैं, ना लेना चाहिए लेकिन मांग। चलिए खैर मैं इसमें तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं आपको जहन देने जा रहा हूँ उसके हवाले से सुने। वापस से कहते सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस पहलू पर हम गौर करते हैं, नजर डालते हैं, बेमिसाल आका नजर आते हैं, बेमिसाल आका नजर आते हैं। मोहिब्बान गिरामी एक सहाबी रसूल है, अभी कलमा नहीं पढ़े, मोहिब्बान गिरामी देहात के रहने वाले हैं, वो चल करके आए और आका की बारगाह में आने के बाद में आका की बारगाह में आए और उसके बाद कहा कि मैं आपकी बारगाह में चल करके आया हूँ, मैं आपकी बारगाह में चल के आया हूँ। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो, कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं एक अपना गुजार सुनाना चाहता हूँ, वो ये है क्या अल्लाह तबारक व तआला, क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा? तब परवरदिगार आलम के हबीब ने फरमाया कि अगर सिद्ध के दिल से तौबा कर लो अल्लाह सब माफ फरमाएगा, अल्लाह गफूर रहीम। तो उन्होंने कलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा कि जो मैंने इस्लाम लाने से पहले जो कुछ काम किए हैं, क्या अल्लाह उसका अजर मुझे अता फरमाएगा? तो मोहिब्बान गिरामी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुमने क्या ऐसा अजर किया, कौन ऐसा काम किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ और जानवरों की मैं देखभाल करता हूँ। मेरे पास कई जानवर ऊँट हैं और मैं उसको ले करके चलता हूँ और मैं उसको जंगलों में ले जाता हूँ, चलाता हूँ। कहा कि ठीक है। बोले जब मैं एक मरतबा ले करके गया और मेरे ऊँट जो है ना, 2 ऊँट वहाँ से गायब हो गए जंगल से। मैं जब वापस कुछ ऊँट को लेकर आया तो देखा कि मेरे 2 ऊँट नहीं है। जब बोला नहीं है तो वो उसको मैं तलाश करने के लिए मैं चल दिया और जंगल की वादियों से घूमता हुआ चलते चलते जब गया तो क्या देखता हूँ, एक झोपड़ी है और मेरा 2 ऊँट वहीं बंधा हुआ। मैं वहाँ के घर वालों को आवाज दी, वो बाहर आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊँट हैं, ये दोनों जो बंधे हैं ये मेरे ऊँट हैं और मैं जंगल में लाया था चराने के लिए, लेकिन ये दोनों मेरे ऊँट रास्ते भाग गए, चलते चलते तुम्हारे करीब आ गए और लगता है कि तुमने इसको रख लिया है, इसलिए मेरे ऊँट वापस दे दो, मेरे ऊँट वापस दे दो। इतना सा कहना था कि इसी आसने में मोहिब्बान गिरामी बच्चे के घर से रोने की आवाज आती है। क्या फरमाते, मैं उसी पर बैठा हुआ था,
बच्चे की रोने की घर से आवाज आई। जब रोने की आवाज आई ना तो उसके बाद ये जो आया था उसके पास में वो शख्स घर वाला, वो आवाज देता है, कहा क्या बेटा है या बेटी? क्या कहा? बेटा है या बेटी? तो अंदर से आवाज आती है कि बेटी जन्म ली है। क्या ली है? दादा क्या कहती है? बेटी जन्म ली है। कहा कि बस उसको कपड़े में लपेटो और मेरे पास लाओ, मैं उसको जंगल में जाकर दफन कराऊंगा। तो ये फरमाते हैं कि मेरे दिल में उस वक्त अजीब कैफ हुई कि आखिर ये बच्चों को क्यों दफन करना चाहता है। तो ये से मुखातिब हुए, क्या ऐसा से तू सही मानों में बच्चों को दफन कर देगा? बोला मैंने कई बच्चों को दफन कर दिया है, मैं इसको भी दफन कर दूंगा। कहा कि आखिर ऐसा क्यों? बोला मैं अपने घर में बच्चियों को देखना नहीं चाहते ही नहीं। कहा कि तू ऐसा वाकई करने जा रहा है? बोला मैं अभी उठाऊंगा और अभी जाकर के मैं दफन कर दूंगा। इतना सा कहना था। तो वो बोलते हैं कि मैं उस वक्त कह उठा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने मेरे ऊँट बांध रखे हो, इस बच्चियों को जो तूने तुम्हारे घर बच्ची जन्म ली है, उस बच्ची को मुझे दे दो और ये दोनों ऊँट ले लो, ये दोनों ऊँट ले लो और ये बच्ची को मुझे दे दो। इतना सा कहना था। कहा कि सही मानो में तुम देने के लिए ऊँट तैयार है? बोला हाँ देने के लिए तैयार है। बच्चियों को लाया कपड़े में लपेट करके और बोला कि मेरे गोद में दिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं इसको जाने उसी वक्त दूंगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अभी चाहता हूँ, इतनी रात हो चुकी है, मैं जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, हमको यहाँ से अपने किसी गुलाम के साथ में भेज दो, ये ऊँट वहाँ जाएगा और मैं वहाँ उतर जाऊंगा और ये ऊँट ले करके वापस आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये मेरा गुलाम जाएगा ना, ये एक ऊँट से तुम्हारे साथ तो लेकर के तुमको जाएगा, लेकिन इसके साथ में और तुमको 2 ऊँट देने पड़ेंगे। कहा कि चलो ये भी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मुझको यहाँ से पहुँचा दो। वो फरमाते हैं कि मैंने उन बच्चियों को लिया और ऊँट पर सवार हुआ, उसका गुलाम लेकर मेरे पास में घर आया। मैं वहाँ से उसके साथ 2 ऊँट तो ये हो गया पहले से, और एक 2 ऊँट और दे दिए, 4 ऊँट दिए और उस बच्चियों को रखा और पालना शुरू किया। उसके बाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ऐसी इश्तियाक पड़ी और मैंने बच्चियों को इस तरीके से जो दफन करते थे, मैं उस बच्चियों को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था। जहां मिलता था मैं पैसे दे करके कभी ले लेता था, कभी जानवर दे करके ले लेता था। कहा 1 नहीं, 2 नहीं, 5 और 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास ऐसी बच्चियां 200 मेरे घरों में है। जो बच्चियां मेरे घर में पलती है, जवान होती है, बड़ी होती है, मैं उसको शादी ब्याह करा देता हूँ। लेकिन वही पाने के रामी जब इतना सा कहना था, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आए और उठ खड़े हुए। तो हुजूर ने फरमाया, क्या ये ऐसे कम है जो तू वादियों से चल करके मेरी बारगाह में आकर के तूने इस्लाम कबूल कर लिया है? यही इस्लाम का तो तरीका है जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। बच्चियों को दफन ना होने दो, जिन्होंने बच्चियों को दफन होने से रोक लिया है, अल्लाह के रसूल से सीने से लगा लेते हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सोचे तो मोहम्मद बारी गिरामी मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते हैं क्या ये कम है कि तुम्हें इस्लाम की दौलत नसीब हो रही है? क्या परवरदिगार आलम की रहमत ये कम है तुम्हारे लिए जो तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है और मुझे तूने देख लिया है? अब तेरा नाम सहाबियों में होगा, दुनिया के लोग आबिद शाहिद होंगे, अपने वक्त के गौसो कुतुब होंगे, लेकिन तुम्हारा मकाम वो मकाम होगा जो आला मकाम होता है, वो सहाबियों में तुम्हारा मकाम होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचने की बात तो ये है कि दोस्तों जिन्होंने बच्चियों की खिदमत की है, और अल्लाह के रसूल का फरमान सुनिए, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वही पानी करामी सहाबा कराम का मजमा है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनके पास बच्चियां अल्लाह ने दी है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब अता फरमाए। समझे? जानते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिन्होंने घर में 3 बच्चियां जन्म ली और उन्होंने तीनों बच्चियों को परवरिश की और वो बच्चियां सुने फलों तक पहुंची, उनको शरीयत मुताहरा सिखाया, नमाज रोजे की तलकीन की, बड़े और छोटे की इज्जत एहतराम सिखाया, और जब बच्चियां चली गई अपने घर को तो परवरदिगार आलम के हबीब फरमाते हैं उसे जन्नत की बसारत है, उसे जन्नत की जोड़े बोलते हैं, उसे जन्नत की बसारत है। तब बच्चे जाऊंगा हजरत मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
बताइए स्टेज पर मौलवी और गुफ्तगू कर रहा है दूसरे बात, तो हम लोग क्या करें? तवज्जो से सुने, माशाल्लाह अच्छी बात है, सही बात है। देखिए तवज्जो रखेंगे, महफिल पाक की चाशनी बरकरार रहती है। महफिल पाक की अगर रहमत बरकत है तो अच्छी रहती है, तवज्जो के साथ सुने तो। और सही मानूं में बरकतें रहमतें महफिल पाक की वही होती है दोस्तों, जहाँ के तवज्जो के साथ कुछ बातें सुनी जाए। तवज्जो हुजूर की हदीस पाक है, हुजूर की बयान हो रहा है, हुजूर की कुछ बातें सुन ली और हमको लगता है सुनेंगे तो चाशनी बढ़ेगी, बढ़ेगी मोहब्बत बढ़ेगी। अब देखिए हम सुने बताया, आप ध्यान लगाए, हमसे कहते सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वहीं पर ये हुजूर फरमाते सहाबा किराम को मजमाए 3 बच्चियां हुई। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास 3 बच्चियां नहीं बल्कि अगर 2 बच्चियां हो, है ना, कुर्बान जाओ दोस्तों, 2 बच्चियां। हुजूर फरमाते हैं 2 बच्चियां ही हो तो या रसूल अल्लाह उनके लिए क्या हुक्म है? आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं अगर 3 नहीं है 2 ही है, उसके लिए भी जन्नत की बसारत है। इतना सा कहना था मुहिब्बान गिरामी। एक साहबी रसूल और खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह, जिनके पास 2 नहीं 3 नहीं 1 ही बच्चियां हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? आका तो मुहिब्बान गिरामी रहमत वाले हैं, आका तो देने वाले हैं, आका तो कासिम है, आका तो खिलाने वाले हैं, आका तो जन्नत बांटने वाले हैं, आका तो अपने घर से सबको खिलाते हैं, कभी किसी को महरूम नहीं करते। आका की बारगाह आलिया में सवाल करने वाला सवाल करता जा रहा है। आका मुहिब्बान गिरामी उसके बाद गुलामों को बढ़ाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। इन्हीं के दिन में 3 की ललक है। मुहिब्बान गिरामी वो तो खड़े होकर बोल दिए या रसूलुल्लाह मेरे पास 3 बच्चियां परवरदिगार आलम ने अता की है, तो परवरदिगार आलम मुझे जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चियों को अगर तूने शरीयत मुतहरा सिखाया है, अगर तूने शरीयत का पैगाम सिखाया है, जन्नत की बसारत है। मुहिब्बान गिरामी 2 है, जन्नत की बसारत है। एक साहबी रसूल खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह अगर 1 है तो क्या हुक्म है? हुजूर फरमाते हैं अगर उसी को तूने मोहब्बत से पाला है, ये भी तुम्हारे लिए जन्नत की बसारत है। इतना सा कहना था मुहिब्बान गिरामी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आप तवज्जो के साथ दिल खोल करके सुने मुहिब्बान गिरामी, ये न सोचे वो कि जिनके पास बच्चियां हैं परवरदिगार आलम से जन्नत का परवाना हुजूर के सदके में कल मैदान महशर में अता फरमाएगा। जिनके पास 3 बच्चियां होगी उसे जन्नत का परवाना दिया जाएगा। अगर 3 नहीं 2 ही है तो 2 वालों को भी जन्नत का परवाना दिया जाएगा। अगर 2 नहीं तो 1 ही है, उसको भी जन्नत का परवाना दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों, अल्लाह अकबर। जरा देखो तो मेरे नौजवानों, जरा सोचो तो सही, आका देने पर जब आते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं। आका जब देने पर आते हैं रुकते ही नहीं है, इसलिए आका ऐसे सखी है, आका देने वाले ऐसे सखी है। कुर्बान जाओ दोस्तों, एक साहबी रसूल खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह जिनके पास 3 बच्चियां हो उसे भी आपने जन्नत की बसारत दे दी है। या रसूल अल्लाह जिनके पास 2 बच्चियां हैं उसको भी आपने जन्नत की बसारत अता कर दी है। या रसूल अल्लाह जिनके पास 1 बच्चा है उसको भी आपने जन्नत की बसारत दी है। लेकिन या रसूल अल्लाह जिनके पास बेटियां नहीं है लेकिन बेटियों की मोहब्बत है, अगर बेटियां नहीं है बेटियों की दिल में चाहत और लगन है, बेटियां तो नहीं है लेकिन बेटी पालने का शौक और जज्बा दिल में अगर आग लेती है तो हुजूर फरमाते हैं अगर बच्चियां नहीं है ये मोहब्बत सलामत है, उसको भी जन्नत की बसारत है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका देने पर आते हैं तो अल्लाह अकबर सब कुछ अता कर देते हैं। और अल्लाह अकबर क्यों नहीं दे, वो तो महबूब हैं, वो तो देने वाले हैं। और वैसे देने वाले हैं दोस्तों के देने लेने वालों की झोलियां तंग हो जाती है, लेकिन देने वाले की झोलियां तंग नहीं होती। अल्लाह और दुनिया की तारीफ गवाह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहिब्बान गिरामी क्या नहीं अता फरमाया। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि दोस्तों अल्लाह अकबर, सोचने की बात है कि हम लोग कहाँ ठहरे हुए हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत लिखते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, हाथ ही अपना खाली है। हम मुफलिस क्या
مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی ہے. ہم لوگ مول کیا چکائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کامیابی کی ضمانت ہے. حضور کی محبت میں ہی ساری محبت چھپی ہوئی ہے. ساری محبت کے پردے اسی میں چھپے ہیں. اور یہی محبت کے پردے جب اٹھتے ہیں انسان باکمال ہو جاتا ہے. یہی محبت کے پردے جب اٹھتے ہیں تب انسان کے اندر ایک جذبیت شوق پیدا ہوتی ہے. اور یہ محبت لانے کے لیے حضور پر درود پڑھیے. حضور سے محبت سیکھنے کے, حضور سے محبت پالنے کے لیے اپنے دل میں شریعت مطہرہ کی محبان گرامی پیروی کی جذبات پیدا کر لیجیے. آپ محبان گرامی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں آیت مقدسہ پر توجہ ڈالیے اور اس کے بعد اس کو سوچنے کی کوشش کیجیے آخر یہ آیت مقدسہ کس تناظر میں نازل ہے, یہ آیت مقدسہ ہمیں کس چیز کا پیغام عطا کرتی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ اس کے لیے محبان گرامی آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے محبت کرنی ہوگی, صوفیوں سے محبت کرنی پڑے گی, بزرگوں کے بارگاہ عالیہ میں جان و ادب ٹیکنا پڑے گا. تب پتہ یہ چلے گا یہ راز کیا ہے, راز ہوتے کیا ہے, مصلی کیا ہے, مصلی پر آنا کیا ہے, مصلی پر کھڑا ہونا کیا ہے, مصلی پر آ کر کے جھکنا کیا ہے, جھکنے کے بعد سجدے میں کیا ہے, سجدے کی حقانیت کیا ہے. سجدے کی حقانیت جب آیا ہوتی ہے تب چاشنی ملتی ہے, اور جب نبی کے عشق میں سجدہ ادا کیا جائے تو سجدے کی چاشنی الگ ہوتی ہے. سجدے کی چاشنی الگ ہوتی ہے. لیکن آج سجدے سے ہی تو سارا ماحول خالی ہے نا, سارا ماحول خالی ہے. تو پھر سجدے کی للک کہاں نظر آئے گی؟ سوچنے والی بات ہے کہ ہزاروں سجدوں کو بچاتی ہے نماز, ہزاروں سجدوں کو بچاتی ہے نماز, اور جو نماز کو بچا لے اسے امام حسین کہتے ہیں. جو نماز کو بچا لے اسے امام حسین کہتے ہیں. اور ہم لوگ تو ان ساری چیزوں سے بہت پرے ہیں, ہے نا, بہت پرے, بہت دور. ہاں بھی دیکھیے شب برات کا مہینہ, ہمارے نوجوان کو تھوڑا توجہ دیتا ہوں, غور کیجئے گا. سب پٹاخہ میں الجھا ہوا رہے گا. شب برات کی رات رہے گی پٹاخے میں الجھا ہوا. نماز پڑھنے والے, قرآن شریف پڑھنے والے, جانے والے, آنے والے سب کوئی ڈسٹرب. ارے بولیے ہے کہ نہیں؟ ڈسٹرب جگاتا ہے, نہیں, پریشان کرنا لوگوں کو, جگا کے رکھتا ہے کہ جاگ کے رہو بھائی. وہ جگانا کیا جگانا ہوا, اپنے آپ کو پہلے جگ تو لے صحیح سے, ہے نا. جو جگنے والے اس کو بھی پریشان, اس کو بھی ڈسٹرب. بہرحال ہے میرے بھائی میرے دوست, ایک بات میں آپ کے جان تک اور ختم کر دیا. کتنا ٹائم ہو گیا ہے نا, بہت ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ الحمدللہ. درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم وصلوا علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں, بزرگوں کی تاریخ پڑھیں. ہر کوئی ہر زمانے میں دیکھیں صحابہ کرام کی تاریخ اگر پڑھ کے دیکھیں گے تو اس 15, 16, 17, 18 برس کی جب عمر ہوتے تھے ان لوگوں کو, عمر میں ہی وہ لوگ اچھے مقام حاصل کر لیتے. 15, 16 برس میں کوئی اپنے وقت کا فاتح ہو جاتا ہے. حضرت ابھی یہ جو بوڑھا ہو کر کے حج کرنے جاتا ہے نا, سب بلی کھا کے, سب چوہا کھا کے, مطلب جو حج کرنے جاتا ہے اس کا حج ہی نہیں ہوتا ہو. جوانے کا وہاں ہے, یہ بوڑھا کا کچھ نہیں چلتا ہے. دیکھیں میں آپ نے یہ بات کہا, شیخ شادی کا قول بتاتا ہوں, سن لیں آپ. دیکھیں شیخ صاحب, جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو کبھی فقیروں کے کیا کہتا ہے کہ دست پر آپ نے ایک باتیں عطا کر دی. دیکھیں آج آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں, ہمارا تجربہ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, غور کریں. اللہ کو شیخ شادی کا قول ہے, شیخ ابو علی صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جو بھی عبادت ہے وہ عبادت جوانی میں, عبادت جتنی بھی ہے وہ جوانی میں. تمام صحابہ کا قول پڑھیے, بزرگوں کا قول پڑھیے. دیکھیں جتنے بھی آپ دیکھیں گے, میں کہہ رہا تھا کہ 15, 16 برس کی عمر ہونے کے بعد وہ لوگ سارے چیز میں پریپاک ہو جاتے ہیں, پریپاک ہو جاتے ہیں ہر چیز میں. عبادت میں بھی اسی طرح, اپنی تلوار بازی میں بھی اسی طرح, اپنی چاہو فسانیت میں بھی اسی طرح, کام کرنے بھی اسی طرح, نقاشی کرنے میں بھی اسی طرح. جس فن میں جاتے تھے ہر فن میں باکمال ہو جاتے تھے. اور آج کا ہمارا نوجوان 20 برس ہوتا ہے کچھ کر ہی نہیں پاتا,
उसके बाद खत्म ना अपने हो जाता अब 20 वर्ष के बाद तो यहाँ मालूम ये होता है कि सारे नौजवान का वहाँ से घटना ही शुरू हो जाना है। क्योंकि इसलिए कि जो सोचो फिक्र है, देखें मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, आप याद करें, मैं आपको बताता हूँ कि देखें शेख बुअली शाह कलंदर अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उनकी किताब है एक लिखी हुई बुअली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि, उसको पढ़ेंगे ना दिन की दुनिया ही एक ऐसी हो जाएगी, अच्छे अच्छे अहले इल्म हज़रात भी बेकार जाएंगे, उनकी किताब पढ़ेंगे सोचने वाले। कभी कश्फुल महजूब पढ़ के देख लीजिएगा, मैं आपको इसी तरह नहीं बोला, कश्फुल महजूब पढ़ के देखिए बुजुर्गों की किताब, अखबारुल अखयार पढ़ करके देखिए, मखदूमुल मुल्क शेख सरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात सदी पढ़ के देखिए, पता ये चलेगा कि अभी सही मानों में हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ अभी समझा ही नहीं है। सोचिए मुहिबान गिरामी जान वो लिखते हैं कि जो इबादत जवानी में चाशनी महसूस कराती है वह बुढ़ापे में, चाहे वो हज हो चाहे वो नमाज हो, ये जितनी भी चीजें हैं, ज़कात तो आप जब चाहिए, माल होगा तब ना ज़कात है भाई, माल होगा तब ना हज है भाई, लेकिन ये दो इबादत बहुत अहम है जो परवरदिगार आलम ने अफजलुल इबादत कहा है नमाज को, अफजलुल इबादत है। और यहाँ हमारा नौजवान उसी वक्त में सोता, सोया हुआ, सोया वो खो गया, हमारे जिंदगी उसमें सोने में लगी है और इंसान कमाल उसी वक्त पाता है, क्योंकि हर रोज परवरदिगार आलम आसमान दुनिया की तरफ इल्तिफात फरमाता आधी रात के बाद। कब? आधी रात। इसलिए बुजुर्गों को देखें, कौन जितनी बुजुर्गों की तारीफ पढ़ेंगे वो आधी रात के बाद जगते हैं। एक मतलब 6 दरगाह वहाँ हम गए थे, तो एक पत्थर रखा हो, समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर, उस पत्थर को आप उठा नहीं सकेंगे, लगेगा तो इतना सा गेंद है लेकिन उठा नहीं पाए। 6 दरगाह में हजारीबाग, 6 जगह का नाम, वहाँ 6 दरगाह से मशहूर है, वो जंगल में जाकर के मजा शुरू बोले सा पत्थर। तो उस पत्थर के बारे में क्या है जानते हैं? वो बुजुर्ग जब अपने हयात में थे तो आधी रात को जब उठे और उसके बाद में जब पानी के लिए निकले लेने के लिए, तो उसी पत्थर में टोकर लगे, समझ रहे, पत्थर में टोकर लगे, और जो ही लगी ना तो कहते हैं क्या लोहा है कि लकड़ है, लकड़ी है कि पत्थर है, ना जाने क्या क्या। और रिसर्च करने वाले जब उसको ले करके जाते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं तो लकड़ी भी है, लोहा भी है, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, ना जाने आखिर में बोल देता है क्या 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 भी है, आखिर में ये कह देता है ना जाने इसमें क्या क्या है। अल्लाह हो। तो बुजुर्गों का ये कौल क्या रहा? आधी रात के बाद उठा, आधी रात के बाद उठने के बाद में उसके बाद मुखातिब होते हैं। और देखें ख्वाजा हिंदरवली क्या बुजुर्गों की तारीफ पढ़ करके देखें, सब की तारीफ इतनी नजर आती है कि अल्लाह अकबर, इन लोगों ने कितनी जाफिसान है। और ये लोग ऐसे नहीं थे कि क्या कहता कि इल्म नहीं था, बल्कि ये लोग अपने वक्त के मुहद्दिस थे, अपने वक्त के बहुत बड़े फक़ीह थे, कुरान हदीस के जानकार थे। और यहाँ जब आए तो मुहिबान गिरामी कुछ लाखों लश्कर लेकर के नहीं आए थे, अपने साथ सिर्फ ईमान का पैगाम लेकर के आए थे, मुसल्ला और कुरान लेकर के आए थे। और दुनिया वालों को जब पैगाम दिया तो मुहिबान गिरामी इंसान लाखों के तादाद में कलमा पढ़ के मुसर्रफ व इस्लाम पैगाम हक अता फरमाया। ये सारी चीजें उस वक्त है कि दोस्तों आप अपनी जिंदगी में इनकलाब बनाएं, नबी से सच्ची मोहब्बत जो करेगा वही कामयाब। यहाँ ऊंच नीच नहीं, बड़े छोटे नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत वही पाएगा जो मुत्तकी होगा। और हमें तो अभी हमारे नौजवानों को तो अभी क्या कहता है कि इन सारी चीजों पर अभी पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए। इसीलिए आया कि बुजुर्गों की सोहबत करें, बुजुर्गों की बारगाह में बैठें और उनसे इल्म दीन सीखें। और हकीकत भी यही है, वाज़ेह है कि यार